শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 122 থেকে শুভারম্ভ করিব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 7.122 অনওয়ার্ডস। পরিণাম বাদেশ্বর হয় নকি বিকারী, পরিণাম বাদেশ্বর হয় নবিকারী, এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে করি, এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে করি। শঙ্করাচার্যের মতে পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হন, এই বলেই তিনি বিবর্তবাদ স্থাপন করেছেন। तो भगवान निराकार है, लेकिन भगवान जब जड़ जगत में आते हैं तो जड़ देह धारण करते हैं और इसीलिए उनका विकार होता है, बिकॉज ही एक्सेप्ट्स अ मटेरियल बॉडी। दीज आर ऑल मायावाद फिलोसफी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यदि इसको मानेंगे तब तो फिर वो ईशोपनिषद का जो ये है ना, ओम पूर्णम पूर्णम, इसका तो खंडन हो जाएगा फिर। ये तो शंकराचार्य बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, অপোজিট ফিলোসফি তো हो गई। हाँ, गलत। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার ভাষ্যে বলেছেন যে কেউ যদি স্পষ্টভাবে পরিণামবাদের অর্থ না বুঝে তাহলে সে অবশ্যই জড়জগৎ ও জীবের তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে জড়জগৎ ও জীব ভিন্ন বস্তু এবং তারা নিত্য সত্য মিথ্যা নয়। तो हम लोग और जड़ जगत यानी बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति अलग है। কিন্তু শঙ্করাচার্য অর্থহীন ভাবে আশঙ্কা করেছেন যে পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হন। देखिए, परिणामवाद कोई सोच सकते हैं क्या है ये फिलोसफी? ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হন কেন? কারণ কি ঈশ্বর জড় শরীর ধারণ করেছে, उसका परिणाम में, परिणाम माने एज अ रिजल्ट, इंग्लिश में बोलते हैं एज अ रिजल्ट ही गेट्स कंटेमिनेटेड बिकॉज द लॉर्ड हैज एक्सेप्टेड अ मटेरियल बॉडी भगवान का सच्चिदानंद में। তাই তিনি কল্পনা করেছেন যে জড়জগৎ ও জীব উভয়ই মিথ্যা এবং তাদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। দিস ইজ পরিণামবাদ। ওকে, কথার মেয়ের প্যাচে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে জীব ও জড়জগৎ স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব অলিক এবং সেই সম্পর্কে রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয় অথবা ভক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, অথবা শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, সেই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এইভাবেই তিনি জঘন্যভাবে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করেছেন। কথার মেয়ের পেছনে উনি কি বলেছেন? জীব ও জড়জগৎ স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব অলিক। আর বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট? আমরা কি স্বতন্ত্র? জড়জগৎ কি স্বতন্ত্র? না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতা কি বলছেন? মায়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম। জড়জগৎ দুর্গা দেবী কখনো নিজের ইচ্ছা করতে পারে না, যা করেন ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন, ঠিক না? তো কিন্তু এই মায়াবাদ বলেছেন না, দে আর অল ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সেপারেট লিভিং এন্টিটি। সেপারেট লিভিং এন্টিটি তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ভগবানের অধ্যক্ষতায় তারা কার্যকলাপ করে। আর আরো বলেছেন, দেখুন বলছেন, আর কি কি উদাহরণ দিয়েছেন? রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, অন্ধকারে हम लोग रस्सी को सांप मान लेते हैं, उसी तरह अज्ञान में उन लोग भगवान को जड़ मान लेते हैं। আরেকটা কি দিয়েছি উদাহরণ? सुक्तिते যেমন रजत भ्रम है। सुक्तिते हिंदी में क्या लिखा है या इंग्लिश में क्या लिखा है? सुक्तिते रजत भ्रम है। सीपी को सोना समझने के दृष्टांत। क्या क्या? फिर से बोलिए। सीपी को सोना, वो क्या होता है? सीपी शायद ये क्या बोलते हैं, ঝিনুক মনে হয়। শুক্তিতে ঝিনুক, মানে শুক্তি ঝিনুকের মধ্যে পাওয়া যায় না, মুক্ত। আচ্ছা, এটা কি আপনি জানেন শিওর নাকি এটা? হ্যাঁ, কিন্তু রজত বলছে, এই জন্য রজত মানে তো রূপ। हरे हिंदी में सोना लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? यस, गायत्री माता जी। हाँ प्रभु, सीपी से मैंने चांदी मोती ही निकलता है, सोना तो नहीं निकलता।
ও আচ্ছা, সিক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, তো মানে এই পালটাকে রূপোর মতো লাগে, সেটা হতে পারে আচ্ছা ভুল। পালটাকে রূপর মনে, কারণ কি আইভরি কালার একটু 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 রূপর মতোই দেখতে, ঠিক বোধহয়, ঠিক ঠিক, সেটাকে রূপ ভেবে নেওয়া। রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্তটি মান্ডুক্য উপনিষদে রয়েছে, কিন্তু তার মাধ্যমে দেহকে আত্মা বলে মনে করার ভ্রান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আত্মা হচ্ছে চিৎকণা, যা ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে মামাই বংশ জীবলোকে, তাই মোহবশত বিবার্তবাদ পশুবৎ মানুষ তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। ক্লিয়ার? এটিই হচ্ছে বিবর্তবাদ বা মায়ার যথার্থ দৃষ্টান্ত। এই শ্লোকটিতে এই বিবর্তবাদের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য না জেনে এবং একটি বস্তুকে অন্য বস্তু ভুল করে মনে করা, যেমন দেহকে আত্মা বলে মনে করা, মানেই হচ্ছে বিবর্তবাদ। ठीक है, विवर्तवाद का डेफिनेशन दे दिया है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। দেহকে আত্মা বলে মনে করছে যে সমস্ত বদ্ধজীব, তারা সকলেই এই বিবর্তবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত। কেউ যখন সর্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত শক্তির কথা ভুলে যায়, তখন সে বিবর্তবাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যে কখনো পরিবর্তিত না হয়ে একই সত্তায় চিরকাল বিরাজ করেন, সেই তত্ত্ব ঈশোপনিষদে বর্ণিত হয়েছে, যেটা পঙ্কজ বাবু বলল था। ওম পূর্ণমদা পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণম মুদচ্যতে। ভগবান পূর্ণ, এবং এমনকি তার থেকে পূর্ণ সত্তা নিয়ে নেওয়া হলেও তিনি পূর্ণই থাকেন। जड़ ये समझ में आया ना, तार থেকে পূর্ণ সত্তা নিয়ে নেওয়া হলেও, নিয়ে নেওয়া কেন? अगर उनसे अगर कुछ एमिनेट हो रहा है, सोचिए अवतारी कृष्ण से अभी रामचंद्र एमिनेट हो रहा है, उनसे निकाल लिया, तो कृष्ण क्या डाइल्यूट हो जाएगा, छोटा बन जाएगा क्या? नहीं, कृष्ण कृष्ण ही रहेगा। जड़ जगत ভগবানের শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত, কিন্তু তবুও তিনি হচ্ছেন সেই একই আদি পুরুষ। তার রূপ গুণ পরিকর আদি কখনোই ক্ষয় হয় না, there is no dilution। শ্রীল জীব গোস্বামী তার পরমাত্ম সন্দর্ভে বিবর্তবাদ সম্বন্ধে বলেছেন, বিবর্তবাদের প্রভাবে কল্পনা করা হয় যে জীব জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। প্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাতর ফলে এই ধরনের ধারণার উদয় হয়। পরম তত্ত্ব বা পরম ব্রহ্ম সব সময় এক এবং অভিন্ন, তিনি পূর্ণ চিন্ময়, তাই তিনি অন্য সমস্ত ধর্মরহিত, সর্ববিলক্ষণ এবং অহংকার শূন্য। अहंकार शून्य। कोई भजन याद आ रहा है आप लोगों का? परम तत्व अहंकार शून्य। तो वो अपराध शून्य है, ये भले याद है, अहंकार शून्य याद नहीं आ रहा। अपराध शून्य है, लहो कृष्ण नाम, ये भले याद है। वेरी गुड। अक्रोधा परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेড়ায়। अक्रोधा परमानंद, उस दिन आचार्य तो प्रूव करे थे ना ये भजन, नित्यानंद राय, अभिमान, अभिमान अहंकार है कि मोटामोटी, शून्य निताय नगरे बेড়ায়। उसीलिए तो प्रचार करना इजी हो गया। अभिमान रहता है तो लोगों को कैसे हरिनाम देता है, नहीं हम जाकर हावड़ा स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जी नहीं, हम इतना बड़ा खानदान का औरत है, हम इतना बड़ा बिजनेसमैन है, हम क्यों जाकर हावड़ा स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जी। तो ये अभिमान त्याग करके शून्य, अभिमान शून्य निताई नगरे बेড়ায়। যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি, আমারে কি নিয়ালহ भज गौर हरि। ऐसा उनका नम्रता था, उसलिए तो जगाई माधई भी पिघल गया, जगाई माधई जैसे दुष्ट प्राणी भी पिघल गया। और इसलिए उन्होंने जगाई माधई को टारगेट बनाया था कि अगर इन लोग का हृदय पिघल जाएगा
इन लोग में अगर हम कृष्ण भक्ति संचार कर पाएंगे, पूरे नदियावासी चेंज हो जाएगा। और वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। ভগবানের পক্ষে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া এবং অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা বা ভ্রমযুক্ত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়, कभी संभव नहीं होता है। कभी कभी भगवान जानबूझ के ऐसा नाटक करते हैं कि भ्रम हो गया भगवान का। हाँ, बलराम जी बोलते हैं, अरे क्या हो रहा है ये, ऊपर से सब गाभी लोग नीचे भाग भाग के आ रहा है, भ्रम हो गया ऐसे। से भगवान भ्रम नहीं हो जाते, भगवान कभी भी भ्रमित नहीं होता, भगवान एक्टिंग करता है। और भगवान और थोड़ा उदाहरण दीजिए, कहाँ भगवान भ्रम का एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, उदाहरण दीजिए। भ्रमित होने का भगवान नाटक कर रहे हैं। सीता मैया चोरी हो गई थी, हाँ, प्रीतिमानंद प्रिय माता जी। जब रावण सीता मैया को हर ले गए थे तब हाँ, वेरी नाइट, राम जी रो रहे थे, रोदन कर रहे थे, वेरी गुड एग्जाम्पल। फिर यशोदा माँ जब भगा रहे, कान्हा भी भाग रहा है डर के। यस पंकज प्रभु। ब्रह्मा की मोहिनी, गूगल हाथ। हरे कृष्णा। वो भगवान आईने में देख करके वो ये करते हैं, अपना चेहरा देख करके भ्रमित होते हैं। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, बोलिए प्रभु। यशोदा मैया जब उनको रस्सी बांध देती तो रोते थे। हाँ, वेरी गुड। इस तरह से भगवान भ्रमित होने का नाटक नहीं कर रहा है, डोंट फॉरगेट, नाटक नहीं कर रहा है। एक्चुअली सचमुच भगवान योग माया से प्रभावित होकर ऐसे एक्टिंग, या जो भी एक्टिंग बोलना भी गलत होगा, सचमुच ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे। एक्टिंग बोलना ठीक नहीं होगा। यस पंकज प्रभु। He allows himself to be bewildered. He allows himself to be bewildered and whatever, जो भी वो किया, भगवान ने किया लीला, वो सचमुच वैसे ही था। भगवान सचमुच डर रहे थे यशोदा माँ से। आग से आंसू गिर रहा था, डर का सब, वो सचमुच वैसे हो रहा था, ऐसा नहीं कि एक्टिंग कर रहे थे। ठीक है, या माता जी। भगवान स्व इच्छा से कर किए ये चीज, भगवान अपने इच्छा से ये चीज स्वीकार किए। योग माया को मतलब बोले थे कि मुझे ऐसे फुलवा देना स्वागत के लिए, इवेंट अपनी इच्छा से। और जीव है जो जैसे शादी में इवेंट मैनेजर को बोल देता है ना पिता, मेरा बेटी की शादी में मैं अभी डांस करूंगा, मेरे को सिखा देना। तो इवेंट मैनेजर सिखाते हैं, डांटते भी, आए आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो उस समय पिता क्या गुस्सा होकर बोलेगा, आए तुमको टाका नहीं देंगे, जाओ, नहीं सिखाना, जाओ घर चले जाओ, हमको डांट रहे हो तुम, ऐसे बोलेगा क्या कभी? नहीं। जैसे ऐसे ऐसे करने बोले, वो भी ऐसे ऐसे करेगा। यस अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान जो भी करते हैं, जिसे हम लीला समझते हैं, लीला समझना मेटेरियल वर्ल्ड में ये भ्रम है। भगवान तो जो करते हैं वो अपने आप में अपनी क्रिया को संपादित करते हैं, लेकिन लोगों को तो लीला बोलते हैं। आप जो समझते हैं वो, हाँ, तभी तो लीला बोलते हैं। उसी को तो लीला बोलते हैं प्रभु, इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसी को पास्ट टाइम बोलते हैं लीला। हाँ, उसी को तो लीला बोलते हैं। ठीक है, वर्ड यूज ठीक है। ओके। ब्रह्म बस्तु परम अलौकिक বস্তু, সুতরাং তাতে ক্ষুদ্র মানুষদের অচিন্তনীয় শক্তি সম্ভাবনা আছে। বুঝা গেল এই সেন্টেন্সটা? প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মের অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই স্বীয় কার্য। বাত, কফ ও পিত্ত ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগকে আশ্রয় করলেও যেরূপ পরস্পর বিরোধী ধাতুর শোধনের জন্য ঔষধের ব্যবহার হয়, সেই প্রকার পরস্পর বিরোধী গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্ব অনুমিত হলেও অবয়ব আদি স্বীকৃত হয়। सो भगवान ने निराकार जो है, भगवान जो निराकार जो तत्व है, ये तो पूरा साकार तत्व का एकदम ऑपोजिट है। हाँ ये ना बताइए, भगवान का ब्रह्म ज्योति पूरा निराकार तत्व है, भगवान साकार रूप आकार है, उनमें साकार है, तो ये तो पूरा एकदम ऑपोजिट जैसा है। होले हो अवैध आदि स्वीकृत, लेकिन वो भी ट्रू है, वो भी है भगवान का।
भगवान का बहुत परस्पर विरोधी चीज है। भगवान का 16,108 रानियां हैं और हर एक रानिया से कितना संतान उत्पादन हुआ? 1,000 ना 10,000 ऐसे कुछ ना, किसी को मालूम है? এক জনের 100টা করেছিল। 100 करके, ठीक है, एक एक रानियों से 100। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि कितना 10? अच्छा 10। अभी इंद्राणी माता बढ़ा दे रही है। ओनली 10 10+1। अच्छा 10+ बोल रहे हैं अभी, ये तो बहुत पॉलिटिकल हो गया। 10+। 10+1, 10 पुत्र और 1 कन्या। अच्छा ऐसा है, ओके। तो ये सब इतना संतान उत्पादन का, और शास्त्र ये भी बोला कि भगवान एकमात्र भगवान आज एकदम नैष्टिक ब्रह्मचारी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, शास्त्र में से दिया हुआ है। और हर एक कितना कंट्रोवर्शियल, ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट लॉजिकल कंट्रोवर्सीज घिरा हुआ है भगवान के संबंध में। भगवान उनको जोगेश्वर भी कहा, भगवान जोगेश्वर भी कहा गया। ये ऑपोजिट हो गया क्या? जोगेश्वर तो ऑपोजिट हो ही गया प्रभु। परकिया प्रेम में रहते हुए जोगेश्वर कहा गया, बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ ठीक है, अच्छा वो बोलिए, पूरा बोलिए पहले। हाँ अभी ठीक है, यस। जो जोगेश्वर, जोगी, परम जोगी बोला गया, और ऑन दी अदर हैंड परकिया भी। हाँ, परकिया रस आस्वादन करो और बोल रहे आप जोगेश्वर, जोगियों के ईश्वर। तो परस्पर विरोधी। সেই বিষয়ে বস্তুতে যদি এই রকম অচিন্ত শক্তি থাকে, তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে যে তার থেকে অনন্ত গুণ বিশিষ্ট এক অচিন্ত শক্তি রয়েছে, ताते विस्मय की আছে। भगवान का ये शक्ति इतना विस्मयकर होगा, इसमें आश्चर्य का क्या बात है? क्योंकि लीला भी तो पूरा एकदम अपोजिट लीला करते हैं भगवान, परस्पर विरोधी वाला लीला करते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान का शक्ति है अंतरंगा, और भगवान का और एक शक्ति है बहिरंगा भी, और दोनों तो एकदम अपोजिट है या ना, अंतरंगा और बहिरंगा। एक चीज जगत को संभालते हैं, एक जड़ जगत में जीवों को पिटाई करते हैं, रख देता है जबरदस्ती। दोनों का कार्यकलाप तो पूरा अपोजिट है। तो एक ही व्यक्ति से ऐसा परस्पर विरोधी चीज निकल रहा है, ये सुन के तो लोग सोचते हैं बाप रे बाप, ये क्या चल रहा है? एक ही व्यक्ति और इतना इतना योगेश्वर, और इधर परकीय रस आस्वादन कर रहा है। बोल रहा है ब्रह्मचारी, और इधर एक एक पत्नियों से 11 संतान, और टोटल 16,108, ज्यादा नहीं, उतना पत्नियां हैं। तो ये क्या चल रहा है? ये सब संभव है, ये सब संभव है। एक्सट्रीम, बोथ एक्सट्रीम, समझ रहे हैं आप? दोनों तरफ एक्सट्रीम। जैसे क्या उदाहरण दो, कुछ कुछ जगह होता है भारतवर्ष में जहां बहुत ठंडा भी पड़ता है और बहुत गर्म भी। जैसे आप राजस्थान में जाएंगे, चूरू, चूरू बोल के एक जगह है ना, चूरू डिस्ट्रिक्ट, क्या ठंड पड़ता है, माय गुडनेस, क्या ठंड पड़ता है, और गर्मी में भी क्या गर्म पड़ता है। तो एक ही जगह, लेकिन पूरा एकदम ऑपोजिट चीज एक ही जगह में। ये कुछ इस तरह। क्या तो ये हो गया ये श्लोक। हाँ बोलिए प्रभु। ये जो सर्वशक्तिमान, इसीलिए तुमको कहा गया है कि जो कल्पना से परे हो, माने मनुष्य की चिंता धारा से भी बहुत दूर हो। हाँ, जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता, हाँ, वो भी कर देते। यस। अगला श्लोक 123। हाँ बोलिए प्रभु। जैसे कालिया नाग के साथ शुरू शुरू में तो वो खेल रहे थे, कालिया नाग को जब से उसका वो क्या किया था ना, अपना पूरा फन से बांध लिया था भगवान को। अच्छा, लपेट लिया था पूरा उसे, तब मतलब पूरा जानबूझ के बंध गए थे उससे, और उसके साथ खेल रहे थे। उसके बाद उसको उद्धार किए जो कि। ओके, अगला श्लोक। वस्तुतो परिणामवाद से प्रमाण। वस्तुतो परिणामवाद से प्रमाण। देहे आत्मबुद्धि विवर्तेर स्थान। देहे आत्मबुद्धि विवर्तेर स्थान। শক্তির বিকার একটি প্রামাণিক সত্য। দেহে আত্মবুদ্ধি করাই হচ্ছে বিবর্ত। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, চিৎ স্ফুল্লিঙ্গ। দুর্ভাগ্যবশত সে তার দেহকে আত্মবুদ্ধি করে, এবং সেই ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় বিবর্ত, বা असत्य सत्य बोले मने करे। कौन सा भजन में है असत्य के सत्य बोले मने करे? जीव। यस, करुणा राधे माता जी, कौन सा भजन में है? नहीं, भजन तो नहीं याद आ रहा है, पर मुझे कौन सा ट्रांसलेशन। भजन में? मेरा पहले प्रश्न उत्तर दीजिए, फिर आप लोग का प्रश्न मैं उत्तर दूंगा।
बताइए कौन सा भजन में? असत्य रे सत्य करे मने, असत्य रे सत्य करे मने, নিতাইয়ের করুণা হইবে, ব্রজে राधा कृष्ण पावे। क्या था? निताई पद कमल शायद उसी में है। एनीवेज, ये क्लास में हम लोग का प्रभु जी भजन में इतना रुचि नहीं है, प्लीज बीच बीच में भजन मत लाइए, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ओके, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? भजन बीच बीच में लगता है। ये सब प्रकाशानंद सरस्वती का मायावाद शिष्य लोग फिर से अवतार लिया है कलयुग में ये क्लास में। हाँ, तो इसीलिए हम लोग से ये एक्सपेक्ट मत करिए, वी आर ड्राई फिलोसोफर्स। इसीलिए तो आपसे लेसन सीख रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए तो सीख रहे हैं। वेदांत सूत्र पढ़ाइए, सिर्फ वेदांत सूत्र पढ़ाइए, बुक्स पे बुक्स, क्लास पे क्लास कराइए, और कुछ नहीं। कहीं घुमाना मत ले जाइए, कोई कीर्तन कोई भजन प्लीज मत करिए। हम लोग सब बनारस से आए हैं पूर्व जन्म में, तो इसीलिए प्लीज, हम लोग का हृदय एकदम पत्थर जैसा है, कीर्तन से पिघलता नहीं है। बोलिए। अभी तक बनारस का असर है। हाँ, साल में 2 बार 3 बार जाएंगे तो ऐसे ही होगा। बोलिए। प्रभु, ये इसमें जो तात्पर्य में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज ए प्रूवन फैक्ट, ये समझ में नहीं आ रहा है। इट इज फॉल्स बॉडीली परसेप्शन, प्रामाणिक सत्य देहेर आत्मबुद्धि कराई হচ্ছে বিবর্তন। তো শক্তির বিকার মানে डाइल्यूशन इज अ ऑब्वियस लॉजिक। डाइल्यूशन क्या उदाहरण दो, माने पूर्णमदा पूर्णमिदम, ये तो इलॉजिकल है ना जड़ जगत में। आप सोचिए 100% से कुछ ले लिया तो 100% का विकार होता है या नहीं होता है? बताइए। होगा होगा, जड़ जगत में तो होगा। हाँ, तो इसलिए शक्तिर विकार एक प्रामाणिक सत्य, इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ, लेकिन भगवान का केस में नहीं होता है। शक्ति का विकार भगवान का केस में नहीं होता है। ये शक्ति का जो विकार होता है, इसको ही तो बोलते हैं विवर्तवाद, जो मायावाद फिलोसोफर है। वो बोल रहा है कि भगवान सत्य है, लेकिन भगवान पुण्य है, लेकिन जब जड़ जगत में आता है तो भगवान का विकार हो जाता है। दिस फिलोसफी इज कॉल्ड विवर्तवाद, बट इट डज नॉट स्टैंड फॉर कृष्णा, इट डज नॉट स्टैंड फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ और सुप्रीम लॉर्ड। ये हम लोग का वैष्णव फिलोसफी है, ये शास्त्र भी बोलता है। जैसे ईशोपनिषद में बताया गया, ओम पूर्णमदम ओम पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? विवर्तवाद पहले समझिए, व्हाट इज विवर्तवाद? विवर्त मीन्स देयर इज डाइल्यूशन, इफ देयर इज डाइल्यूशन देयर विल बी डिग्रेडेशन ऑफ द ओरिजिनल। अगर कुछ भी एमिनेट होगा तो ओरिजिनल से कुछ घाटा भी होगा। सत्यवान माता जी। प्रभु, जड़ जगत में आते हैं तो विकार हो जाता है, किसका? भगवान के बारे में बोले? हाँ, वही तो मायावाद लोग ये बोलते हैं, वही तो विवर्तवाद फिलोसफी है। पूर्णमिदम जैसे हुआ, जैसे समुद्र में से जितना भी पानी निकालो समुद्र वैसे का वैसे ही रहेगा, तो भगवान तो ऐसे ही हुए प्रभु। तो फिर जड़ जगत में मायावादी लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग कि विकार हो जाता है। करेक्ट। आगे, देह आत्मा नय किंतु पशु और मूर्ख मानुषेरा देहके आत्मा बोले मने करे। विवर्त माने आत्मार स्वरूपेर परिवर्तन नय, देहके आत्मा बोले मने करार भ्रांति हच्छे विवर्तन। तेमনি भागवत गीताয় বর্ণিত 8টি জড় উপাদান ভূমির অপ অনলা বায়ু আদি সমন্বিত ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি যখন বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে, তখন परमेश्वर भगवाনের কোনো পরিবর্তন বা বিকার হয় না। हम लोग का विकार होता है जब ये पंचतत्व और मन बुद्धि अहंकार जब कार्य करता है, तो वी गेट, हम लोग का विकार होता है। हम लोग कार्य करता है, वो कार्य कभी कर्म होता है, कर्म विकर्म ये सब होता है। भगवान का कुछ नहीं होता है। भगवान चोरी करने से भी ऐसा नहीं कि भगवान का फॉल डाउन हो जाता है, उसका भगवान को प्रायश्चित करना पड़ेगा अगला जन्म में, ऐसे कुछ नहीं है। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। वो ये लॉज मतलब उदाहरण जो हम लोग पेश करते हैं बार बार, समुद्र वाला, तो समुद्र तो भौतिक चीज है, ये तो आध्यात्मिक चीज नहीं है। भगवान की शक्ति समुद्र में दया करके एक चीज बोलता हूँ, सबसे हाथ से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अगर उदाहरण लिया जा रहा है, जरूरी नहीं कि हर एक एंगल से उस उदाहरण को आप लीजिएगा। ना वो उदाहरण लिया जाता है एक पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए। हाँ, वो ठीक है। अभी आप उसको दूसरा एंगल में मत लीजिएगा। अच्छा, ठीक। जरूरी नहीं कि हर एक तत्व के लिए उस उदाहरण को फिट होगा। अच्छा, अभी प्रश्न कीजिए। अभी प्रश्न ये किए कि भगवान की शक्ति के साथ समुद्र को हम तुलना कर सकते हैं या नहीं? समुद्र का उदाहरण लिया गया एक्चुअली जीव का अचिंत भेदाभेद समझाने के लिए ये लिया जाता है, जो अभी सत्यभामा माता जी ने लिया गलत, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। यूजुअली समुद्र का उदाहरण लिया जाता है कब प्रभुपाद यूज करते हैं?
कि जीव का अचिंत्य भेदा, जीव भगवान के समान है क्योंकि दोनों का कॉम्पोजिशन एक है। कॉम्पोजिशन समझते हैं? लेकिन दोनों का क्वांटिटेटिव अलग है। ये एक मग का पानी बोल रहा है और वो विशाल समुद्र का पानी, दोनों का क्वांटिटी अलग है। इस चीज के लिए ये उदाहरण लिया जाता है। इसका मतलब नहीं हर एक तत्व का समझाने के लिए एक मग पानी और समुद्र का उदाहरण लीजिएगा। नहीं ठीक है पंकज प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके अलावा ये भी है कि बहुत सा चीज ऐसा भगवान के बारे में जो कि हम लोगों के पास में जो अवेलेबल, हम उसी का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम लोग कमल नयन बोलते हैं, बिकॉज वी नो ओनली कमल सबसे सुंदर मानते हैं, इसलिए हम लोग कमल से, वो तो उनसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन हम लोगों का लिमिटेशन है कि हम उससे ऐसा कुछ और यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो हम लोग देखे उसी से उनका उदाहरण देते हैं। करेक्ट। 124 नंबर श्लोक, महाप्रभु आगे और भी बता रहे हैं। अविचिन्त्य शक्ति युक्त श्री भगवान, अविचिन्त्य शक्ति युक्त श्री भगवान, इच्छाए जगत रूपे पाए परिणाम, इच्छाए जगत रूपे पाए परिणाम। परमेश्वर भगवान अचिंत्य शक्ति युक्त, তাই তার ইচ্ছায় তার অচিন্ত্য শক্তি जगत रूपे परिणत है। भगवान का स्वेच्छा से ये जड़ जगत बनता है और ये जगत भी भगवान के अंडर में ही है। जैसे सरकार का स्वेच्छा से जेल बनता है और कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी जेल में जाते हैं। सब जेल वासियों को थोड़ा निराश है सब। प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उन लोग का, प्राइम मिनिस्टर जाता नहीं है, कोई मिनिस्टर जाता होगा बीच बीच में, थोड़ा उन लोग को आश्वासन देने के लिए कि अच्छा बनो, अच्छा से कार्य करो, तुम लोग का सजा कम हो जाएगा। कभी कभी राजा भी जा सकता है ना ऐसे जेल में। तो स्वेच्छा से करता है भगवान। 125 नंबर। तो उसी तरह भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेकर भगवान बताते हैं कि हमारा जो अवतार, हमारा जो नाम रूप, ये सब जो इसमें रत जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। इस तरह से भगवान जड़ जगत के जीवों को आश्वासन देता है और उसीलिए हम लोग भजन कीर्तन में लग जाते हैं, ये सोच करके कि इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, इस जड़ जगत से हम लोग मुक्त हो पाएंगे। जैसे सजा कम किया दिया जाता है ना, जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है जेल में उसका सजा कम किया जाता है, तो वैसे ही हम लोग का भी सजा कम कर देंगे और वापस हम लोग निकल जाएंगे। 125 नंबर श्लोक, तथापि अचिंत्य शक्ति हय अभिकारी, तथापि अचिन्त्य शक्ति हय अविकारी, प्राकृत चिंता मुनि ताहे दृष्टांत जे धोरी, प्राकृत चिंता मणि ताहे दृष्टांत जे धरी। चिंतामणि स्पर्शे लोहा सोनाয় পরিণত হয়। किसी के पास है ऐसे चिंतामणि? पारस मुनि, पारस पात्र कर काছে আছে? रहने से भी बोलेगा थोड़े, अटैक हो जाएगा सब। सनातन गोस्वामी जी के पास में था, उनका पूरा चीज है हम लोग के पास। हरि बोल। प्रभु आप खुद ही तो पारस मुनि है। ओके ठीक, खुद ही तो आपके लिए ही तो हम लोग चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, सबका आदमी हो गया, लाइफ चेंज हो गया, मैंने डिजिटल चेंज हो गया, मैंने बात करने तरीका से चेंज हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। श्रील प्रभुपाद सचमुच पारस मुनि। देखिए सारा विश्व में जाकर जस्ट टच किया, जहां जहां श्रील प्रभुपाद गया वहां मंदिर हो गया, सेंटर बन गया और 10 साल में 108 मंदिर स्थापन हो गया विद इन 10 years। और ऐसा पारस मुनि श्रील प्रभुपाद अप्रकट लीला के बाद ये 108 बन गया 1008 आज के दिन में। मोर देन 1000 टेम्पल्स सेंटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये है असल पारस मुनि, ये है लेटेस्ट पारस मुनि। पारस मुनि तो प्रस्तुत के समय वो लोहा को सोना बना सकता है और श्रील प्रभुपाद तो है सुपर पारस मुनि। उनका प्रकट के बाद भी उनका प्रभाव से लोहा सोना बन जा रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। हाँ राजीव प्रभु। वो एक कथा में बताया जा रहा था कि पारसमणि और शुद्ध भक्त में यह अंतर है कि पारसमणि लोहा को सोना बनाता है, लेकिन शुद्ध भक्त मतलब लोहा को पारस पत्थर बना देते हैं। शुद्ध भक्त लोहा को पारस पत्थर। हरि बोल, हरि बोल। हाँ वेरी नाइस एग्जाम्पल, एक्सीलेंट। वो भी पारस मणि बन जाता है, वो भी जिससे टच करेगा या क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है। वाह वेरी नाइस। यस বলুন। মৈত্রী ঋষি হওয়ার আগে উনি ব্রাহ্মণ ছিলেন,
উনি ব্রাহ্মণ শুনে উনি বেদ অধ্যয়ন করতে শেখার জন্য উনি গেলেন পরাশর মুনি, ব্যাসদেবের বাবার কাছে পরাশর মুনি। পরাশর মুনি উনাকে শিক্ষা দিলেন, বলছি স্যার কোথায় আসছি, হ্যাঁ শিক্ষা দিলেন, শিক্ষা দিয়ে গুরু দক্ষিণা চাই, গুরু দক্ষিণা হিসেবে উনি সোনা চাইলেন, সোনা বলছে আমরা সোনা গুরু দক্ষিণা চাই। এবং অতি সেই গন্ডকী নদীতে চান করতে গিয়ে উনি একটা পাথর নিয়ে আসেন, পাথর নিয়ে এসে পরাশর মুনিকে দান করেন। পরাশর মুনি এইটা সোনা বলে, হ্যাঁ এইটা সোনা বলে, কি করে সোনা হয় বলে তুমি দেখিয়ে দাও। দেখিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি ভজনের মাধ্যমে এবং বেদ পাঠের মাধ্যমে উনার নারায়ণ মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন। এটা একটা পরাশর মুনি হতে পারে। হরে কৃষ্ণ বাবু, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। ধন্যবাদ প্রণাম। ओके, अगला श्लोक। आज का कोटा खत्म, ठीक है। आजकल ये 3 ml, इससे ज्यादा नहीं। कहाँ थे हम लोग? पर वो पारस पत्थर का बारे में नहीं, अरे कौन सा श्लोक में? उफ, आप लोग पारसमणि का सपना देख रहे हैं। 125 125 होगा अभी ना, 26 होगा। 26 ओके, 25 में क्या था? চিন্তামণি স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়, কিন্তু তবুও চিন্তামণির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা পারা যায় যে পরমেশ্বর ভগবান থেকে যদিও অসংখ্য শক্তির প্রকাশ হয়, তবুও তিনি अविकृतई থাকেন। अच्छा, ये एग्जाम्पल समझ में आया? पारसमणि का कोई परिवर्तन नहीं होता, पारसमणि पारसमणि रहता है, वो दूसरे को परिवर्तन कर देता है, लेकिन वो ओरिजिनल। तो ऐसे ही भगवान जड़ जगत सृष्टि होता है भगवान के प्रभाव से, लेकिन इसका मतलब नहीं भगवान भी जड़ हो जाते हैं। समझ में? पारसमणि तो सोना नहीं बन जाता ना, पारसमणि तो पारसमणि रहता है, वही बता रहे हैं। अगला श्लोक 126। नाना रत्न राशि হয় চিন্তামণি হইতে, नाना रत्न राशि হয় চিন্তামণি হইতে, तथापि ह मणि रहे स्वरूप स्वरूपे अविकृते। तथापि यह मणि रहे स्वरूपे अविकृते। वही चीज फिर से बोल रहे महाप्रभु, চিন্তামণি থেকে যদিও নানা রকম রত্ন রাশি উৎপন্ন হয়, তবু চিন্তামণি তার স্বরূপে अविकृत থাকে, अनचेंज्ड। वैसे भगवान से नाना ब्रह्मांड निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, लेकिन भगवान तो जड़ नहीं है, भगवान चिन्मय रहता है। प्राकृत वस्तुते যদি অচিন্ত শক্তি হয়, প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত শক্তি হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত শক্তি ইথে কি বিস্ময়। ঈশ্বরের অচিন্ত শক্তি থেকে বিস্ময়। চিন্তামণির মতো একটি প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত শক্তি থাকতে পারে, তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত শক্তিতে বিশ্বাস না করার কি আছে? হরিব। एक छोटा चिंतामणि मत यदि एक प्राकृत वस्तु पत्थर में अगर चिंतामणि बन सकते तो भगवान में नहीं होगा क्यों? टू गुड। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা যে কোনো মানুষই সূর্যের শক্তি বিবেচনা করার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অনাদিকাল ধরে সূর্য তাপ ও আলোক প্রদান করে আসছে, কিন্তু তবুও তার শক্তি হ্রাস পায়নি। समझ में आया? उदाहरण, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে সূর্য কিরণের প্রভাবে জড়জগতের পালন হয়। প্রকৃতপক্ষে সকলেই দেখতে পায় কিভাবে সূর্য কিরণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালন কার্য সম্পাদিত হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং কি কক্ষপথে গ্রহগুলির বিচরণ সম্পাদিত হয় সূর্যের শক্তির প্রভাবে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা কখনো কখনো বিবেচনা করে যে সূর্য হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ। मेरे को भी ये लगता था कि सूर्य ही भगवान है। सूर्य के लिए अनाज वनाज सब कुछ हो रहा है, खाना पीना सब कुछ हो रहा है, लाइट मिल रहा है, ये भी हमको आगे लगता था। কিন্তু তারা জানে না যে সূর্য হচ্ছে একটি মাধ্যম মাত্র, কেননা তার সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা। সূর্য এবং চিন্তামণি ছাড়াও বহু বহু জড় পদার্থ রয়েছে, বিভিন্নভাবে যাদের শক্তির পরিবর্তন হলেও সেইগুলি অপরিবর্তনীয় থাকে। সুতরাং আদি কারণ পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির পরিবর্তন হলেও তার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের বিশ্লেষণের। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सूर्य की तरह गंगा नदी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। भगवान के चरण से निकली है, इतना कुछ उसमें मतलब ये होता है तो भी वो पवित्र ही रहती है हर समय।
यस, अपना ड्यूटी करते आते हैं, पूरा पूरा प्रकृति को ही बोल सकते हैं आप। सब अपना अपना टाइमली हो रहा है, सीजन चेंज, डे एंड नाइट, एवरीथिंग टाइमली हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বিশ্লেষণের ভ্রান্তি জীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যরা প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর মতে শঙ্করাচার্য বেদান্ত সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। আনন্দময় ভাষ্যত সূত্রের ব্যাখ্যা করে শঙ্করাচার্য কথা মার প্যাচে ময়ট প্রত্যয়টির এমন অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন যে সেই বিশ্লেষণের থেকে বোঝা যায় যে বেদান্ত সূত্র সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল খুবই কম, কিন্তু তিনি তার নির্বিশেষবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কেবল বেদান্ত সূত্রের ব্যবহার করেছেন। क्योंकि एजेंडा था, भगवान ने एजेंडा दिया, কিন্তু তা করতেও তিনি সক্ষম হননি, কেননা তিনি উপযুক্ত দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা বৈদিক শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মই সবকিছুর উৎস। কিন্তু এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দ এবং অর্থ করেছেন যে সেভাবেই অর্থ করা হইলে জীব গোস্বামীর মতে ব্যাসদেবের শব্দজ্ঞান ছিল না বলে মনে হয়, কেননা তার ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা বেদান্তের সেই অর্থ হয় না। তো পুরো একদম উল্টা পারপট লিখা है कौन? शंकराचार्य। বেদান্ত সূত্রের প্রাকৃত অর্থ এইরকম প্রবঞ্চনাপূর্ণ ভাবে বিকৃত করার ফলে এক শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা বাক্য চাতুর্যের দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের বিশেষ করে ভাগবত গীতার বিভিন্ন মন গড়া অর্থ তৈরি করে। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माने शरीर, 5 पांडव है, 5 इंद्रिय, ऐसे करके अपना अपना मन गड़ा। সেই সমস্ত মূর্খ পণ্ডিতদের একজন কুরুক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন এই দেহটি হচ্ছে কুরুক্ষেত্র। এই ধরনের অর্থ বিশ্লেষণ নির্ণয় করে যে শ্রীকৃষ্ণ অথবা ব্যাসদেবের শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ছিল না। তাদের হাব ভাব দেখে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন, ইংলিশে মায়াবাদী का एंगल से बोल रहे हैं, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন তার অর্থ সম্বন্ধে তার যথার্থ ধারণা ছিল না, আর ব্যাসদেব যা লিখেছেন তার অর্থ সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। ऐसा लगेगा उन लोग का भाष्य सुनने से। তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি রেখে গেছেন যাতে পরবর্তীকালে মায়াবাদীরা সেইগুলি বিশ্লেষণ করতে পারেন। हरे कृष्ण, ऐसे लगेगा कि भगवान ये सब छोड़ के गया उन लोग को करेक्शन करने के लिए। लीजिए मेरा जो श्लोक बुक है वो सब तो करेक्शन कर दीजिए, मायावादी लोग करेक्शन करेगा उसीलिए ऐसे वो लगता है। वेदांत सूत्र, यस, व्यासदेव के बारे में ये मायावादी लोग से बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उनका भाष्य सुनने से, पढ़ने से लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण और व्यासदेव का कोई ज्ञान ही नहीं है। उन लोग सब ऐसे श्लोक में बोला, गलत गलत मीनिंग लिखा, कमेंट्री गलत के, क्योंकि वेदांत भागवतम भी तो वेदांत सूत्र का कमेंट्री है ना, गलत गलत लिख के चला गया और हम लोग के लिए छोड़ के गया। हम लोग ठीक करेंगे अभी ये सब। বেদান্ত সূত্র অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের কদর্থ করে সময় নষ্ট না করার পরিবর্তে যথাযথভাবে সেই সমস্ত গ্রন্থের অর্থ গ্রহণ করা উচিত। হরি বল, যথাযথভাবে অ্যাজ ইট ইজ। তাই প্রকৃত অর্থের কোন রকম পরিবর্তন না করে আমরা ভাগবত গীতা যথাযথ প্রকাশ করেছি। তেমনি কেউ যদি বেদান্ত সূত্রের অর্থ বিকৃতি না করে যথাযথভাবে তা পাঠ করেন তাহলে তিনি অতি সহজেই বেদান্ত সূত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই শ্রীল ব্যাসদেব তার শ্রীমদ ভাগবত বেদান্ত সূত্রের প্রথম সূত্র জন্মাদর্শ যত থেকে বেদান্ত সূত্রের বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন। জন্মাদর্শ যত হয় আদিতর তশ্চাতীর্থ বিশ্বভিজ্ঞ সরাট। আমি বাস্তব বস্তুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি সর্বকারণের পরম কারণ, যার থেকে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, যাকে আশ্রয় করে সবকিছু বিরাজ করে এবং যার দ্বারা সবকিছু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ऐसे व्यासदेव जी बोल रहे हैं। নিত্য জ্যোতির্ময় সেই পরমেশ্বর ভগবানের আমি ধ্যান করি, যিনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত এবং যিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। স্বাধীন মানে স্বরাট,
পরমেশ্বর ভগবান সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সবকিছু সম্পাদিত করতে জানেন। তিনি অভিজ্ঞ, তিনি সর্বদাই পূর্ণ জ্ঞানময়। তাই ভগবদ্গীতায় তিনি বলেছেন যে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবকিছু জানেন, কিন্তু ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ তাকে যথাযথভাবে জানেন না। তাই ভগবত ভক্তরা অন্তত আংশিকভাবে পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, কিন্তু মায়াবাদীরা যারা পরম তত্ত্ব নিয়ে কেবল জল্পনা কল্পনা করে, তারা কেবল অনর্থক তাদের সময় অপচয় করে। ভেরি স্ট্রং পারপোর্ট। 128 প্রণব সে মহাবাক্য বেদেরও নিদান, প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান, ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্বধাম। ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्व धाम। प्रणव माने शब्द ब्रह्म, भगवान का नाम, जो भगवान का रूप माने नाम, जैसे भगवान का नाम में जो विस्तार हुआ है उसी को प्रणव, उसी को शब्द ब्रह्म बोला जाता है। ठीक है, शब्द ब्रह्म ओंकार होच्छे वेदेर महावाक्य, इसलिए मैक्सिमम श्लोक ओम से शुरू होता है ना। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। फिर और क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्या है? प्रभु जी ओम नमः शिवाय भी होता है। ओम नमः शिवाय शब्द ब्रह्म भगवान का है, कृष्ण का नाम से ओम पूर्णमद पूर्णमिदं। ये हो गया। ओम नमो नारायणाय। यस, हो गया। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्व अवस्था गतो पिबा जट मरेत पुंडरीकाक्ष सब्बाज्योद्भान्तर शुचि। ओम तत्सत। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत। यस, वेरी नाइस। तो शब्द ब्रह्म ओंकार होता है। गुरु महाराज का इसमें जो है नमो ओम मतलब ओम बाद में क्यों आता है? वही नमो विष्णुपादाय, तो वो ओम नमो के बाद में ओम क्यों आता है? कीर्तन में ऐसे ठीक है, बीच में भी आ सकता है ओम, लेकिन बहुत वैदिक मंत्र में स्टार्टिंग में है। ये तो प्रणाम मंत्र है, प्रणाम मंत्र में ऐसे बोला है नमो विष्णु। वो ओम भद्रकाली कपालिनी ये भी तो बोलते हैं। हाँ, कितना बार डेली करते हैं जब क्या कितना बार? 2000। ठीक है, आगे बोल रहे हैं शब्द ब्रह्म ओंकार হচ্ছে বেদের মহাবাক্য, তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের আধার। তাই শব্দ ব্রহ্ম রূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ এবং সমস্ত সৃষ্টির আধার ওমকারকে স্বীকার করা উচিত। পরমেশ্বর মহাপ্রভু বললেন লোক ভাগবত গীতায়, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। जय जय जय।